Namaskar दोस्तों, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 833वां 833rd एपिसोड है. Let's have the headlines for today. बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, disease is increasing, and India is expected to account for more than 20% of the incremental global consumption for chemicals and drugs over the next 2 decades. तो हमारे यहाँ जो खपत है chemicals और drugs की वो बढ़ती ही जा रही है. In fact, in view of the upsurge in demand for paracetamol, the Health Ministry has requested all pharma companies to ensure a steady supply of the drug. Changing weather and unseasonal rains have precipitated influenza-like illness in Jaipur in Rajasthan. So flu या influenza-like illness वहाँ पे फैली हुई है. And the government also says that the rising incidence of H3N2, ये एक hemophilus influenza virus का strain है H3N2. This is worrisome. It is a matter of concern. तो अकेले जयपुर में नहीं, पूरी इंडिया में इसका concern है. And if flu was not enough, coronavirus, COVID is making a comeback, and India has logged 444 new COVID cases, and our active cases have gone up to 3,809 over the past day. This is according to an update from the Union Ministry. अब जब हमारे सब टॉपिक्स हमारी न्यूज सब ऐसी है रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा, रिलेटेड टू कोविड, रिलेटेड टू ड्रग्स, पैरासिटामोल, इलनेस. लेट्स सी व्हाट आवर टॉपिक इज फॉर टुडे. आज हम क्या बात करेंगे? तीन छोटे छोटे अक्षर FLU फ्लू, बट अच्छे से हिलाते हैं और जोर का झटका बड़े जोर से देते हैं ये तीन अक्षर जो है. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लू, हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू क्योर इट. And warm welcome to Mr. Sharma, who is from the nursing faculty in SGPGI Lucknow. Welcome back, sir. It's good to have you with us again. Welcome also to our ever youthful pediatrician, Dr. Ramesh Pal Singh Pawar from Saharanpur. And नमस्कार अवध किशोर राठौर साहब. आज हम बात करेंगे फ्लू की. स्वप्ना जैन मैडम हैं बेलोर से, उनको भी नमस्कार. We'll be talking about flu. I think every one of us does know someone in the family or someone amongst close friends or maybe himself or herself जो बीमार रहे हों हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में. And usually the disease has been flu. अंशु सिंह जी भी हैं, warm welcome. The word flu is a shortened derivative of the word influenza, INFLUENZA. Influenza जो disease है, it is caused by a virus known as Haemophilus influenzae. तो ये viral disease है. ये बैक्टीरिया से भिन्न है. जो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं वो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं. जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर नॉट एबल टू किल वायरसेस. फॉर वायरस यू नीड एंटीवायरल ड्रग्स, बट वी हैव रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स. एंड वायरसेस भी अलग अलग तरह के हैं. डीएनए वायरस अलग होते हैं, आरएनए वायरस अलग हैं. सो द एंटीवायरल drugs that have been developed keeping a specific virus in mind. Because it is difficult to cure or destroy viruses, the best would be to prevent viral disease. Now, do we want to prevent every kind of disease? अब अगर कोई छींक मारे, मान लो common cold हो, let us say that gets you out of work or it reduces the quality of your life for 3 days. Is it worthwhile going and getting a vaccine for that if the vaccine is also going to reduce your quality of life for 2 days? Maybe not. But on the other hand, and we welcome Dr. Pradeep Rawal from Ujjain in Madhya Pradesh, on the other hand, अगर बीमारी ऐसी है जो निमोनिया कर सकती है, तो Haemophilus influenzae can cause a viral pneumonia. ऐसे ही जैसे बैक्टीरियल निमोनिया होता है या ट्यूबरकुलोसिस से निमोनिया होता है. निमोनिया मीन्स लंग इन्फेक्शन. अगर ये वायरस निमोनिया कर सकता है, अगर ये वायरस लाइफ थ्रेटनिंग हो, एक जगह आंकड़ा था, स्टैटिस्टिक्स थे कि इन यूएसए 80,000 lives were lost due to influenza in 1 year. So that's a lot of lives. So if influenza can be lung threatening, function threatening and also life threatening, then it makes sense to get a vaccination for that. We welcome अनीता सिंह जी. तो एक तो हम बात कर रहे थे कि हम वैक्सीन किस बीमारी में लगवाएं, किस में ना लगवाएं. अगर लाइफ थ्रेटनिंग, लिम्ब थ्रेटनिंग, ऑर्गन थ्रेटनिंग, फंक्शन थ्रेटनिंग इन डिजीज हो तो वैक्सीन मेक सेंस.
Would vaccine make the same sense for everybody? Now that depends upon the community, but certainly you have high risk people. So we'll talk about high risk groups. And Kailash Chawla sir ko bhi welcome karte hain. Kailash Chawla ji is one of the leading voices in New Delhi regarding health education, health advocacy, awareness. So warm welcome Chawla sir. So we have high risk people जिनमें हम वैक्सीन की बात करेंगे. So let's go one by one. हमारा आज का टॉपिक है फ्लू प्रिवेंशन एंड क्योर. तो अगर हम फ्लू को प्रिवेंट या क्योर करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू फिगर आउट व्हाट फ्लू इज. फ्लू एक रूटीन सी बीमारी है जो ऐसे शुरू में तो लगता है रूटीन है. अनीता डडलानी जी को भी वेलकम करेंगे. गुड इवनिंग मैडम. शुरू में इट कम्स इन एज फीवर, खांसी, जुकाम, नजला, बैक एक, मसल एक्स, शरीर फीवर डाउन नहीं आता, एंड ग्रेजुअली द पर्सन बिकम्स सिकर. पता कैसे चलता है दैट इट इज अ रेस्पिरेटरी वायरस? क्योंकि खांसी होती है, कफ which is usually dry cough and which is a very nagging persistent cough. It can increase at night. The fever may also increase at night. बुखार के साथ पसीने और ठंड भी लग सकती है. You can have sweats, you can have cold sweats. So usually this is flu. अब जब फ्लू हो जाता है तो ये एक कहावत है कि अगर आप दवाई लेंगे तो 7 दिन लगेंगे, दवाई नहीं लेंगे तो 1 हफ्ता लगेगा. तो इट विल टेक टाइम फॉर द फ्लू टू सबसाइड. बट इन जनरल एज अ रूल ऑफ थंब, ह्यूरिस्टिक जो हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, यू कैन से कि कोई भी वायरल फीवर 7 डेज से ज्यादा नहीं चलेगा. तो विद इन अ वीक यू शुड बी फाइन. अब ये जो आजकल जो फ्लू फैला हुआ है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे इश्यू है कि इवन आफ्टर अ वीक यू आर नॉट फाइन. खांसी नहीं जाती, आवाज बदल जाती है. सो मेनी ऑफ आवर पेशेंट्स, द सेम वे दैट दे कंप्लेन ऑफ लॉन्ग कोविड, लॉन्ग हॉल कोविड, कोविड के बाद भी सिम्टम्स रहते हैं फॉर 3 or 6 months. Similarly, after flu, symptoms remain. Some people will complain of easy fatigability. Others will complain of low-grade fever. And many people will complain of a nagging dry cough, which prevents them from speaking properly or working properly or exercising properly. Good evening to Vinayak Sharma ji also. He is logged in. एंड क्योंकि ये फ्लू इतना तंग करता है, तो मिस्टर शर्मा फ्रॉम लखनऊ says very rightly that we should get our influenza vaccine shots regularly once a year, especially healthcare providers. So one of the major high risk groups is healthcare providers. Every year a different vaccine is produced. पहले ट्राईवेलेंट वैक्सीन हुआ करती थी जिसमें 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस होते थे, 3 स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस. Now we have quadrivalent vaccine. Quadri means 4. तो जो अब जो न्यू वैक्सीन है जो इस साल की है, that has got one strain of an H1N1 like virus. H1N1 का दूसरा नाम है swine flu. It also has one strain of H3N2 virus. H3N2 like virus. H3N2 वो स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा वाला जो आजकल अग्रसर है इंडिया में. So H1N1 swine flu, H3N2 the current flu, and apart from that, the 2 other strains that are present in quadrivalent vaccine are Victoria lineage and Yamagata lineage. Victoria lineage like virus, Yamagata lineage like virus. तो एक quadrivalent vaccine हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वायरसेस. बहुत सारे तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस भी हैं अलग अलग स्ट्रेन. सो इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑलमोस्ट द एंटायर फैमिली. There is 80 to 90% protection rate. It is an inactivated vaccine, which means it can be given in pregnancy, preconception, lactation also. डोज में 0.5 ml है. आपको मसल में लगाना होता है. तो रिमेंबर इट इज इंट्रामस्कुलर. यदि बच्चा 3 साल से छोटा हो, ये मेरी भी पोस्ट फ्लू कफ चल रही है. So if the child is between 6 months and 36 months, the best site would be the anterolateral part of the thigh. थाई में आगे की तरफ, साइड की तरफ मसल में टीका लगाया जाएगा. मगर बड़ों में बियॉन्ड 3 years यू कैन इंजेक्ट इन द डेल्टॉइड. अब कुछ एक बच्चे होंगे 3, 4, 5 साल के, इन केस द डेल्टॉइड मसल इज नॉट सफिशिएंट, पीडियाट्रिशियन को लगता है कि मसल मास है ही नहीं बच्चे का, तो देन थाई वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर दैट चाइल्ड एज वेल. So one high risk group for the influenza vaccine is healthcare providers. Another high risk group would be those who are exposed to influenza.
Let us say you are working in a crowded marketplace. You have a job where you have to do public dealing. रोज आपको 200-300 लोगों से मिलना होता है at very close contact. Then also you are a care provider and you are at high risk, तो एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाएं. And salam and adab to Rabia Umair ji, who has logged in all the way from Pakistan. Warm welcome, Rabia ji. हम आज बात कर रहे थे अबाउट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा एक्चुअली. तो फ्लू का एपिडेमिक फैला हुआ है नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ फ्लू. इन प्रिवेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लू वैक्सीन. तो 1 injection every year is what is advised. यू विल फाइंड कि जो सब चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और इंटर्निस्ट हैं वो भी अपने टीके लगवाते हैं, ज्यादातर सब लोग लगवाते हैं बिफोर विंटर स्टार्ट्स. एंड अ नाइस वे ऑफ रिमेम्बरिंग वुड बी कि जब दिवाली आने वाली हो तब आप अपने आप को एक दिवाली गिफ्ट दे दें, एक टीका लगवा लें. ये भी याद रखें कि जो इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है, इट वर्सन्स इफ देयर इज एयर पोल्यूशन. तो अगर आपको पहले से ही कोई लंग्स की बीमारी है, क्रॉनिक लंग डिजीज लाइक एस्थमा, chronic obstructive pulmonary disease COPD, you are at more risk of getting influenza. Also अगर एयर पोल्यूशन है then the severity of influenza worsens. तो दिवाली के आसपास एयर पोल्यूशन भी बढ़ती है. So a nice way would be to remember Diwali and take the injection at that time. In case you miss it, you can always take it after Diwali, but do remember that it takes around 2 weeks for the vaccine to begin acting. And जब वो act करेगी, it will act for 1 year. महावीर पुरवाल जी हैं और हम आपको शुक्रिया और धन्यवाद करेंगे, साधुवाद करेंगे कि आप भी हमारे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और परामर्श में जुड़े हुए हैं अभियान में. तो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान मीन्स हेल्थ अवेयरनेस, इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन. इसमें सभी को साथ देना चाहिए. सो वी आर टॉकिंग ऑफ द वैक्सीन, वी हैव डिस्क्राइब्ड द वैक्सीन. फिर एक क्वेश्चन आता है कॉस्ट कितना है. तो रफली 1400-1500 रुपए में इंजेक्शन मिलता है. कहाँ से लगवाएंगे? गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर, जो भी आपके इंटर्निस्ट हैं, आपके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं. बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनल मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी और पीडियाट्रिक्स वाले इंजेक्शन लगाते हैं, बाकी डॉक्टर्स भी लगाते हैं. एंड वी वेलकम रत्नेश जैन जी. बाकी डॉक्टर्स को इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जो हाई रिस्क कैटेगरी है, एक तो सब डॉक्टर्स नर्सेज वैसे ही हाई रिस्क हैं. Even those who are dealing in public, who are working in public dealing jobs, they are at high risk. Anyone with any kind of chronic disease, chronic lung disease, chronic heart disease like heart failure, chronic liver disease, chronic kidney disease, cancer, diabetes, obesity, splenectomy, जिनका स्प्लीन निकला हुआ है, ये सब लोग हाई रिस्क हैं. सैनिटेशन वर्कर्स हाई रिस्क हैं. तो इन सबको हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए एट हाई प्रायोरिटी. पीपल विल आल्सो आस्क यू कि ये तो एंटीवायरल वैक्सीन है, इट इज अ वैक्सीन फॉर फ्लू. व्हाट अबाउट निमोनिया? सर, जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है, न्यूमोकोकल निमोनिया, तो इसकी भी वैक्सीन आती है. यू कैन इंजेक्ट न्यूमोकोकल एंड फ्लू वैक्सीन ऑन द सेम डे, बट डू रिमेंबर इट शुड बी डन एट सेपरेट टाइम्स. बिल्कुल साथ के साथ 2 टीके ना लगाएं. एंड आइडियली जब आप फ्लू वैक्सीन लगवाते हैं या कोई भी और वैक्सीन लगवाते हैं, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सिट इन द हॉस्पिटल और इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. अगर आपको कोविड का अपना बूस्टर शॉट नहीं लगा एंड यू आर अ हाई रिस्क पेशेंट विद क्रॉनिक लंग डिजीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और डायबिटीज और ओबेसिटी, तो वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड गेट अ कोविड बूस्टर एज वेल. लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है, षड्यंत्र है. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑल दीज वैक्सीन्स आर बैक्ड बाय वेरी गुड एविडेंस, बाय स्ट्रेंथ, बाय by lot of research, and it is not one person or one organization which is doing the research. There are so many stakeholders. बिमला कपूर जी को भी वेलकम करते हैं एंड रत्नेश जैन जी को भी गुड इवनिंग. सो ये जो वैक्सीन्स हैं, दे आर मेंट टू हेल्प अस. अब चैलेंज क्या है कि हमारी हिंदी या उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में या उर्दू जुबान में इसका वर्णन ही नहीं है, इसका ट्रांसलेशन ही नहीं है. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. We actually struggle to find a proverb for a stitch in time saves nine. मगर उर्दू में है एक proverb और वो है पैसे बचाओ
अशर्फियां लुटाओ। म्यांमार जो हमारा नेबरिंग देश है, बर्मा, वहां का एक प्रोवर्ब जो है वो कहता है कि व्हाट यू कैन डू विद अ नीडल टुडे, जो आप आज सुई के साथ कर सकते हैं, मे रिक्वायर एन एक्स और अ हैमर टुमारो। आज जो आप सुई के साथ कर सकते हैं, कल आपको हथौड़ा चाहिए होगा वही चीज करने के लिए। एंड एक्चुअली प्रिवेंटिंग फ्लू इज मच मच इजियर देन गोइंग थ्रू फ्लू. So therefore, vaccination we would suggest for everyone who is at high risk. Let us repeat all the high risk people. I forgot to mention women who are planning pregnancy, those who are pregnant. ये टॉप पे आएंगी. उसके बाद बच्चे 6 months एंड अबव. अगर 9 साल के आसपास के बच्चे हों तो कई बार 2 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, एक आज और एक 4 हफ्ते के बाद. अडल्ट को वंस अ ईयर इंजेक्शन चल जाएगा. So, women who are planning pregnancy, those who are pregnant, children above the age of 6 months, these are high risk. Healthcare professionals are high risk. Those who are in public dealing, high risk. And those with any kind of chronic disease, including diabetes and obesity, ये भी high risk वाले हैं. तो इन्हें जरूर टीका लगवाना चाहिए. Ideally, we said before winter starts. मगर आज भी लगवा लें तो कोई हर्ज नहीं है. और फिर साल के साल का अपना एक सिस्टम बांध लें. ये तो हुआ प्रिवेंशन. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स कि आई एम एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ. वी वेलकम डॉक्टर विपिन मंडूला, जो हमारे सिविल सर्जन हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, हिमाचल के. वॉर्म वेलकम सर. तो बिकॉज आई एम एक्सपोज टू इन्फ्लुएंजा, आई वॉन्ट टू डू प्राइमरी प्रिवेंशन, तो मैं फ्लू का वैक्सीन लगवाऊंगा. अब मान लो फ्लू हो गया मुझे, मैं टीका लगवाना भूल गया, फ्लू हो गया, आसपास से मैंने पिकअप किया, मैं बच्चा हूँ स्कूल से ले आया, मैं डॉक्टर हूँ मैं अस्पताल से ले आया, या जनरल पब्लिक कहीं से भी आ गया फ्लू, शादी पे गया वहां से फ्लू आया. तो देन व्हाट डू वी डू? देन द आंसर इज सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट. अब डायग्नोसिस के लिए फ्लू के लिए अलग टेस्ट होते हैं. H1N1 वाला अलग है, H3N2 वाला अलग है, मगर ये थोड़े से महंगे भी हैं और इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है दैट इज लिमिटेड. In many districts, for example, only the civil hospitals or the government medical colleges are allowed to do these tests. So sometimes you are not able to diagnose, but based upon the clinical picture, based upon simple tests, you can make out कि ये flu है. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ज्यादातर टीएलसी बहुत हाई होगा, न्यूट्रोफिल्स बहुत हाई होंगे. अगर वायरल इन्फेक्शन है तो टीएलसी इतना ज्यादा नहीं होगा, न्यूट्रोफिल्स नहीं बढ़ेंगे, लिम्फोसाइट्स ज्यादा बढ़ेंगे, और सीआरपी बहुत हाई होगा. सीआरपी एक टेस्ट है, वो 25, 50, 75 भी हो सकता है, जैसे कोविड में भी हो सकता था. एक्सरे में कभी कुछ दिखाई देगा, हेजी होगा, कई बार नहीं भी दिखाई देगा. सो दैट्स इन्फ्लुएंजा. And once you have diagnosed it, then you have to treat. Even when you suspect, you have to treat. And we welcome Ali Nazakat Sahab also. तो how do we treat? बिल्कुल सिंपल सिंपल से कानून है, कॉमन सेंस वाले कानून है इन्फ्लुएंजा ट्रीट करने के लिए. द फर्स्ट इज रेस्ट. आराम करें. ट्राई टू अवॉइड ऑल अवॉइडेबल वर्क. बॉडी को रेस्ट दें. आपकी बॉडी को वायरस से लड़ने की शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, वो आराम करके मिलेगी. सेकंड इज ईट वेल. न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन. हाई प्रोटीन डाइट. नहीं भूख तो भी खाना है. अगर आप खाना नहीं खाएंगे, आप वायरस के साथ लड़ नहीं पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. सो न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन, especially with regards to proteins. We welcome Girija Chhabria ji also. We are talking about secondary prevention of influenza. Influenza हो गया, हम क्या करें? तो पहला था रेस्ट, दूसरा था न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा है हाइड्रेशन. पानी खूब पिए. पानी पीने से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है. पानी नहीं पसंद तो कुछ और पी लें, लस्सी, नींबू पानी, फ्रूट्स खा लें, फ्रूट जूस पी लें, जो आपका दिल करे. We have a medical grade MNT also. So you might want to take any electrolyte rich drink also if you want. And when you drink more water, it actually helps reduce immunity. It helps improve immunity. It helps reduce headache and myalgia. पानी ज्यादा पीने से एक्चुअली हेडेक कम होती है. एंड इट इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन. अगर आप ठीक खा पी रहे हैं तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप खा रहे हैं वो आपकी हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक पहुंचेंगे. सो फर्स्ट वाज रेस्ट, सेकंड वाज न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वाज हाइड्रेशन.
So fluid optimization. And we welcome Dr. N.S. Sharda, sir, who is one of our most senior physicians from Ahmedabad. Thank you, sir, for your blessings. अकेले पानी पीने से और खाना खाने से कोविड वैसे ये या फ्लू नहीं ठीक होता, तो we do need medicines. So the first medicine would be paracetamol, and you can take it round the clock. You can go up till 3 grams per day roughly. तो 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, ये आप हर 4-6 घंटे में ले सकते हैं। अब जो पैरासिटामॉल है, दिस इज एन एसेंशियल मेडिसिन। इवन जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, दैट इज आल्सो लिस्टेड एज एन एसेंशियल मेडिसिन बाय द डब्ल्यूएचओ। तो दीज आर ड्रग्स दैट वी कैन यूज। एक और ड्रग है एंटीवायरल जो इन्फ्लुएंजा में यूज होता है, दैट इज ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर रफली 50 इंडियन रुपीस की एक टैबलेट आती है। नाउ यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, एंड all pulmonologists will have different ideas. It is about how confident you are with the diagnosis. अगर तो आइडेंटिफाइड H1N1 है, तो फिर तो ओसेल्टामिविर जरूर देना चाहिए। द डोज वुड बी 75 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर मे बी 5 डेज। यदि पेशेंट बहुत सिक हो, आईसीयू में दाखिल है, वायरल निमोनिया है, बायलैटरल, बहुत सिक पेशेंट है, पीपल हैव गिवन 150 milligram twice a day for up to 10 days also. But the standard dose would be 75 twice a day for 5 days. अब अगर H3N2 है जो इस साल चल रहा है, तो भी oseltamivir is effective. So again, it can be used. The question is when you are suspecting influenza, but you don't have a way of testing. So that I think we should leave to the individual doctor. जो भी जितना उनको शक है, जो उनकी शक की सुई है, अगर वो जा रही है H influenza की तरफ, then oseltamivir, if he or she prescribes, that's fine. So that should depend upon the individual doctor. मुझसे कोई पूछे तो आई वुड रीच आउट टू मे बी डॉक्टर अतुल्य अत्रेजा इन करनाल, जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कि डॉक्टर साहब आप देखें ओसेल्टामिविर की जरूरत है कि नहीं। मैंने पैरासिटामोल दिया, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया पेशेंट को, बट ही इज नॉट इम्प्रूविंग। I also might reach out to some of our other guests on KK Med Talks, maybe Dr. Hitesh Ponyani from New Delhi or Dr. Suneet Verma from Panchkula. So I would reach out to them for this decision, but each doctor has the right to decide on his or her own after explaining to the patient. Dr. N.S. Sharda sir एक और point raise कर रहे हैं that breathing exercises improve immunity. The answer is yes. It is good to do breathing exercises or chest physiotherapy. तो how this helps you is it increases oxygen delivery to the lung. तो वो जो जब ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं लंग में, दे आर एबल टू फाइट द वायरस. सो एक्चुअली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट डू फोर्सफुल exhalation when you have a flu or any respiratory illness. जब आप forceful exhalation करते हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपना breath, तो आप वायरस को भी बाहर निकाल रहे हैं, and you are hurting people around you. So it depends upon where you are. Are you at home? How many people are around you? कोई high risk लोग तो नहीं आपके आसपास, आपके बुजुर्ग पेरेंट्स, आपके छोटे बच्चे, आपका कोई भी नजदीकी कोई अजीज जिसको कोई chronic disease हो, who is immunocompromised. यदि ऐसा हो, then avoid this forceful exhalation. Also, if you are sick, now that is not a time to begin unaccustomed exercise. यदि आप पहले ही कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, मान लो योगा कर रहे थे, you can continue at lower intensity when you are sick. But when you are sick, that is not a good idea to say आज मैं डाइटिंग शुरू करूंगा, आज मैं वेट कम करूंगा, आज ही मैं सारी एक्सरसाइज कर डालूंगा पूरे जहान की. That would be a wrong idea. So now we have talked of primary prevention. हमने बात की flu vaccine की, which we would strongly recommend for all people at high risk. Then we talked of secondary prevention: rest, nutrition, hydration, paracetamol, perhaps oseltamivir. अब क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक्स का. एच इन्फ्लुएंजा में, फ्लू में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है. However, if you have a damaged lung, let us say किसी को chronic obstructive pulmonary disease है, lung cancer है, bronchiectasis है, lung की कोई भी और disease है, तो as it is, the person is at higher risk of developing secondary infection, secondary bacterial infection. इसके ऊपर अगर आप जोड़ देते हैं immunocompromised states like kidney disease, diabetes, splenectomy, anemia, cancer, pregnancy, तो और ज्यादा chances हो जाते हैं secondary infection के. So again, depending upon the clinical picture, your doctor may decide to give you an antibiotic. The doctor may decide based on clinical picture, may also decide based upon your lab reports. You know, TLC बढ़ रहा है, neutrophils बढ़ रहे हैं.
एंड देन पल्मोट्रोपिक एंटीबायोटिक, कोई ऐसा सेफेलोस्पोरिन जो पल्मनरी टिश्यू पे एक्ट करता है, देन दैट इज यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड. So trust your doctor if they are prescribing antibiotics. At the same time, avoid unnecessary antibiotic therapy for a viral disease. Prescribe antibiotics only if you think there is superadded bacterial infection, secondary bacterial infection. डॉक्टर एन एस शारदा ने सर ने पॉइंट रेज किया अबाउट फ्लू वैक्सीन. तो सर फ्लू वैक्सीन क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन आती है. देयर आर अ कपल ऑफ ब्रांड नेम्स. वेरी इजीली यू जस्ट आस्क फॉर क्वाड्रीवेलेंट फ्लू वैक्सीन. इंट्रामस्कुलर लगेगा. And because now Dr. Sharda sir is also 70 years young, that is high risk. So flu vaccine should be taken as a rule before around Diwali time every year. यदि पिछले साल दिवाली पे नहीं लगा तो अब होली पे लगा लेते हैं. So it's the same. So you can get it now. One other good thing about flu vaccine is that it protects against heart attack. So ये एक नहीं अनेक स्टडीज हैं जो कहती हैं कि जिन लोगों को फ्लू वैक्सीन लगाए उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं. अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट वन रीज़न में भी जैसे हमने कोविड के दौरान देखा तो कोविड में मायोकार्डाइटिस हुआ लोगों को. स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, मायोकार्डाइटिस. और उसकी वजह से मायोकार्डाइटिस की वजह से बहुत सारी सडन डेथ्स हुई. इट इज पॉसिबल दैट फ्लू में ऑल्सो कॉज some kind of a myocarditis, myocardial dysfunction. And when you take the flu vaccine, you are able to prevent uh, this myocardial disease. A warm welcome to डॉक्टर अतुल्य अत्रेजा. और डॉक्टर अतुल्य आपकी उम्र बहुत लंबी होगी क्योंकि अभी हम हाल ही में बात कर रहे थे कि यदि ओसेल्टामेविर देना है कि नहीं देना. द डॉक्टर शुड डिसाइड. हाउ डू आई डिसाइड? आई रेफर टू डॉक्टर अत्रेजा बिकॉज ही इज द स्पेशलिस्ट. एंड डॉक्टर अतुल्य अत्रेजा एक्चुअली टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ मी एज वेल. सो अभी मैं भी फ्लू से उठा हूँ. सो थैंक्स डॉक्टर अतुल्य फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी. वो थोड़ी सी खांसी अभी बाकी है, उसमें मेरा हाथ तंग है, बट आई थिंक आई विल कम आउट ऑफ दैट. We acknowledge the questions by Anshu Rajputji. So Anshu Rajputji, we will take this topic up in a separate KKMed talks. The question is शीघ्र पतन, and that is a full topic in itself. तो अंशु अलग से कभी discuss कर लेंगे इसको. Dr. Treja also reminds us that for primary prevention, we can take flu vaccine. So especially in high risk people. For secondary prevention, we have mentioned rest, nutrition, hydration, paracetamol, and oseltamivir for the viral infection, antibiotics only for secondary bacterial infection. And Dr. Tulay, आपको pranam आ रहा है from all the younger boys and girls and men and women who are listening to you. So we have spoken now about secondary prevention. अगला हमारा लेवल आता है टर्शरी प्रिवेंशन. टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है? रिस्क फैक्टर थे, हमें वैक्सीन लेनी चाहिए थी, 70% एफिकेसी है वैक्सीन की, जैसे डॉक्टर अतुल्य हमें बता रहे हैं, हम भूल गए लेना. सेकेंड, कोविड, ये फ्लू हो गया तो बीमार हो गए, हमें तुरंत रेस्ट करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था पल्मोनोलॉजिस्ट को, हमने नहीं दिखाया, अब हमें कॉम्प्लिकेशंस हो गई. द कॉम्प्लिकेशन कैन बी रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने में दिक्कत. It can be a secondary infection, secondary bacterial infection. It can be a multisystemic disease. इन्फ्लुएंजा कहने को छाती की बीमारी है, पर छाती के अलावा बाकी अंगों पे भी फर्क आ गया. अब मसल्स वीक हो गई, हार्ट वीक हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया. जब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, देन व्हाट कम्स इनटू प्ले, दैट इज टर्शियरी प्रिवेंशन. इसमें दाखिल होना चाहिए, दाखिल जरूर होएं एंड गेट एडमिटेड अंडर friendly internist, internal medicine doctor, or preferably a pulmonologist, and they will take good care of you. रेशमा जी एक पॉइंट रेज करती हैं, एंड थैंक यू मैडम, आई मिस दिस. प्राइमरी प्रिवेंशन, द सिंपलेस्ट थिंग इज सोशल हाइजीन, दैट इज वेयरिंग अ मास्क, एंड ऑल्सो हैंड हाइजीन. सो थैंक यू रेशमा जी. सो प्राइमरी प्रिवेंशन वाज नॉट ओनली अबाउट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो मैंने कहा, यू हैव टू मास्क योरसेल्फ. अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, प्लीज कर लें, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग इनटू क्राउडेड एरियाज. हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, एंड लेट अस से यू शेक हैंड्स विद समबडी. यू डू नॉट नो कि वो वायरस आपके हाथ पे आया कि नहीं आया. वही हाथ आपके कान पे, आपके नाक पे लगा, आपके मुंह पे लगा, एंड देन द वायरस कैन स्प्रेड. सो ट्राई टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली.
विनय गुप्ता जी हैं, राम राम जी आपको भी। एंड विनय गुप्ता जी पूछ रहे हैं, कैन फ्लू वैक्सीन बी टेकन व्हेन यू आर इन्फेक्टेड विद फ्लू? सो डॉक्टर त्रेजा इज द स्पेशलिस्ट फॉर दिस। विनय गुप्ता जी, बहुत जायज सवाल है आपका। डॉक्टर त्रेजा के आंसर के लिए वेट करते हैं। जब हमें फ्लू होता है एक्टिव, तब तो फ्लू वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, पर कितने हफ्ते के बाद हम ले सकते हैं? हाउ लॉन्ग शुड वी वेट? And Dr. Naresh Dalal also asked the questions. Somebody who has had flu recently, should he or she take the vaccine? And what is recent? How long should we wait? We'll wait for Dr. Teja's answer. डॉक्टर तुल्य ये भी हमें बताते हैं कि अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्लू इंक्लूड डायरिया, मायोकार्डाइटिस जिसकी हमने पहले ही बात की, आर्थ्रेल्जिया मतलब जोड़ों में दर्द, एंड गिलन बैरे सिंड्रोम। गिलन बैरे सिंड्रोम में नसें अचानक कमजोर हो जाती हैं, हमारी नर्व्स कमजोर हो जाती हैं, एंड पेशेंट्स में कम विद अ फीलिंग कि मुझे अधरंग हो गया है या दोनों साइड का अधरंग हो गया है। सो टर्शियरी प्रिवेंशन के लिए दाखिल होना पड़ेगा एंड यू नीड सपोर्टिव केयर। उसमें सर्टनली और सेल्टामिविर भी दिया जाएगा, टेस्ट किए जाएंगे, एंड लाइक वी ऑलरेडी मेंशन्ड द डोज में बी हायर। Dr. Treja reminds us. Thank you, Dr. Treja. Just to introduce Dr. Treja to everyone, he has been on KK Med Talks before as our esteemed guest, and he is a pulmonologist practicing in Karnal in Haryana. So he says that all vaccines should be avoided in sick state. And once someone has recovered from flu, after 4 weeks, you should get the flu vaccine because then you need protection for the next 1 year. डू रिमेम्बर के फ्लू वैक्सीन की प्रोटेक्शन में और फ्लू की प्रोटेक्शन में बहुत अंतर है। जब आपको फ्लू होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ वन स्ट्रेन, सो यू गेट इम्यूनिटी ओनली अगेंस्ट दैट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट द वैक्सीन दैट वी आर टॉकिंग ऑफ इज क्वाड्रीवेलेंट, सो 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स वी ऑलरेडी मेंशन्ड। एक तो होगा H1N1 लाइक स्वाइन फ्लू लाइक, एक होगा H3N2 लाइक, और एक होगा हमारा यामागाटा लीनिएज और विक्टोरिया लीनिएज लाइक। तो चारों का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, बट यू शुड वेट 4 weeks आफ्टर एनी acute febrile illness. So now that was tertiary prevention. दो और लेवल्स हैं प्रिवेंशन के, लेट्स टेक द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट देम। लेट्स रिवाइज आवर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता है जब ना कोई रिस्क फैक्टर, ना कोई डिजीज, तो भी आप प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है जब रिस्क फैक्टर है, डिजीज नहीं आई। प्राइमरी प्राइमोर्डियल को दोनों भी लिया जा सकता है, एंड थैंक यू रेशमा जी फॉर रिमाइंडिंग अस। मास्किंग योरसेल्फ, hand hygiene, and influenza vaccine. Influenza vaccine especially for high risk people, and Dr. Treja adds another high risk category जो हमने बात नहीं की थी जिसकी, that is frequent flyers. लोग जो ट्रैवल करते हैं काफी फ्रीक्वेंटली, एंड जो लोग अक्रॉस द इक्वेटर फ्लाई करते हैं, जैसे कभी इंडिया में और कभी ऑस्ट्रेलिया में, दे शुड टेक बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन यूज करते हैं इंडिया में, सदर्न हेमिस्फीयर वाली अलग है। डॉक्टर त्रेजा के लिए एक और क्वेश्चन है। विनय गुप्ता जी पूछते हैं, आई टुक द फ्लू वैक्सीन लास्ट ईयर इन September. कैन आई टेक द नेक्स्ट वैक्सीन नाउ इन March? वी अज्यूम दैट Vinay Gupta ji lives in India and stays in India continuously and is not a frequent traveler. तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा आंसर, अज्यूमिंग कि विनय गुप्ता जी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, उसका डॉक्टर सिल्ले ने ऑलरेडी जवाब दे दिया कि इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर देन योर फ्लू वैक्सीन शुड बी 6 monthly. सो हमने पहले दिवाली की बात की थी, देन इट बिकम्स दिवाली एंड होली। सो फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स 2 vaccines 6 monthly. फॉर विनय गुप्ता जी जो क्वेश्चन था, सितंबर में लिया था फ्लू वैक्सीन लास्ट ईयर, अब मार्च में लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन वेट अंटिल अगस्त। एंड अगर सितंबर में लिया ही था तो सितंबर अक्टूबर दैट इज दिवाली टाइम, एंड यू कैन फिक्स, यू कैन रिमेंबर दैट वे। अपने आप को भी गुप्ता साहब गिफ्ट दें प्री दिवाली, मगर फैमिली को भी साथ में दें यदि वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो। मेक श्योर दैट द एंटायर फैमिली गेट्स वैक्सीनेटेड। तो ये था प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमने बार बार बात की, जैसे ही फ्लू हो, सिम्टम्स आए तो अपना ख्याल रखें, पैरासिटामोल, रेस्ट, गुड फूड, गुड वाटर, गुड बेवरेजेस। पानी की हमने बात की, पानी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, हेडेक कम होती है, मसल पेन्स कम होते हैं। अकेले पानी ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, तो नींबू पानी, शिकंजवी, कोकम जूस, these are things that can be taken, and you might want to take electrolyte rich medical grade drinks that are available.
In nutritional optimization, we had spoken of macronutrients. We spoke of protein, क्योंकि ज़्यादातर हमारी डाइट में प्रोटीन्स कम होते हैं. बट माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए, एंड जिंक इज माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज गुड इन fighting flu. So thank you, Dr. Atulya, for that pearl of wisdom as well. फिर हमने बात की सेकेंडरी प्रिवेंशन की. पेशेंट सिक है तो क्या दवाई लेंगे, और सेल्टामेविर की बात की, एंटीबायोटिक्स की बात की जब जरूरत हो टू फाइट सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वाटरनरी प्रिवेंशन. ये एक अलग लेवल ऑफ प्रिवेंशन है. क्वाटरनरी प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया बेल्जियम से, और एक फैमिली फिजिशियन है वहां पे, वो है डॉक्टर मार्क जेमूल. उन्होंने ये कहा कि एज रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वी शुड ट्राई टू अवॉइड ओवर लेबलिंग, ओवर डायग्नोसिस, ओवर ट्रीटमेंट. तो यदि फ्लू है तो उसको फ्लू का ही लेबल दें, न्यूमोकॉकल निमोनिया का ना दें, टाइफाइड का ना दें, अननेसेसरी टेस्ट ना कराएं, विडाल टेस्ट ना करें. विडाल वैसे ही फॉल्स पॉजिटिव आएगा, और यदि विडाल पॉजिटिव आ गया तो ऐसा नहीं कि आप टाइफाइड का लेबल लगा दें और टाइफाइड की दवाइयां देने बैठे दो एंटीबायोटिक विदाउट एनी प्रूफ. गेट अ कल्चर डन. इफ द एंटेरिक कल्चर इज पॉजिटिव, देन गिव दोज एंटीबायोटिक्स. If there is a superadded bacterial infection, you can make it out from the blood reports, तो जरूर दें antibiotic, but not unnecessarily. So quaternary prevention tells us avoid the unnecessary tests, avoid the unnecessary labeling and unnecessary treatment. This does not mean that we should avoid all tests. यदि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें कि कंप्लीट हीमोग्राम करवाएं, चेस्ट एक्सरे कराएं या सीटी स्कैन चेस्ट का कराएं, तो जरूर कराएं. There is a lot of difference between CT scan chest and chest X-ray. बट अननेसेसरली सभी का भी सीटी स्कैन ना किया जाए. और विडाल तो सर्टेनली वी शुड टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. विनय गुप्ता जी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन सलाइन और ऑक्सीमेटाजोल स्प्रेज. तो ये जो स्प्रेज हैं सलाइन और ऑक्सीमेटाजोल, दे आर हेल्पफुल इन नेजल क्लियरिंग. अगर नेजल स्टफीनेस हो, सिम्टम्स हो, देन द ड्रग्स विल हेल्प. दे आल्सो हेल्प द लंग्स and they help the gut as well. So in case there is nasal stuffiness, difficulty in breathing, and irritation, dryness, then certainly these sprays can be used. We have spoken of quaternary prevention, avoiding over labeling, over testing, over treatment. आखिरी जो लेवल है, that is quinary prevention. It's a matter of pride for all of us कि जो concept है quinary prevention, ये इंडिया से इजाद किया गया. एंड क्वाइनरी प्रिवेंशन हमें क्या कहता है, दैट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, अब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, वी शुड प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन, वी शुड फाइट मिस इन्फॉर्मेशन. इतना मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे आसपास. सोशल मीडिया में देयर इज सो मच गोइंग ऑन, सबकी अलग अलग थ्योरी, अलग अलग हाइपोथेसिस, ना कोई एविडेंस, ना कोई रिसर्च, बट सब लोग अपना वीडियो बना लेते हैं, एंड सब लोग बड़े सनसनीखेज तरीके से इस तरह से बोलेंगे, जी आप ये करें, वो देसी चीज लें, वो टोटका लें. आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ द देसी दवाई कैन फाइट द वायरस. या तो जिसने भी वो देसी दवाई बनाई, वो गीता पे हाथ रख के बोले, कुरान पे हाथ रख के बोले कि मुझे वो वायरस देखना आता है, मेरे पास ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इस वायरस को देख सकता है. वो ये कहे मेरे पास ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो इस वायरस को नाप सकते हैं कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो फिर उसके बाद वो एंटीवायरल दवाई बनाए. जब आप वायरस देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, साइंस में वो तरीके इजाद नहीं हुए उस पर्टिकुलर साइंस में, तो then there is no business in saying कि I know how to make antiviral drugs. It is totally a commercial game. Quinary prevention हमें ये कहता है that we should prevent misinformation and we should promote information. और promoting information वही है जो हम कर रहे हैं KK Med Talks के through. So I would like to take this opportunity to thank everybody. आप सब एक दूसरे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं and we are practicing quinary prevention. डॉक्टर तुल्य तो जुड़े ही हैं हमारे साथ आज, एंड he is one of our leading pulmonologists. Another leading physician that we have today with us is Dr. Utsav Sahu from Delhi. Dr. Saab got infected with H3N2 in September 22
ओके, सो डॉक्टर उत्सव मुझसे हैं 5 महीने आगे in terms of H3N2. मुझे अभी फरवरी में हुआ उत्सव. And for the past 1 week, again, there is a lingering cough and fever. So many of my patients are having continuous irritant cough. How do we get rid of this post-viral cough? So, what are the common treatments for post-viral cough? Dr. Tulay is with us. We'll ask him also to answer. Dr. Tulay says that saline is very good for kids, जो विनय गुप्ता जी ने point raise किया था. Now, for cough, there are multiple types of cough suppressants. The anti-allergic drugs are there. In general, the newer drugs like fexofenadine or levocetirizine, they are preferred because they are less sedative. But if you were to use the older drugs, an example might be polaramine. These are more sedative, but they are also more effective for cough. Some of the cough suppressants are available only as syrups. You can use them. But when you are choosing a cough syrup, do check whether the combination is rational or not. So use it only for the right manner, for the right indication. There are many folk remedies that you can use. हमने ये कहा था अभी हाल ही में 2 मिनट पहले मैंने कहा था कि देसी दवाई एंटी वायरल नहीं है. But now there is a lot of difference between a desi medicine and a folk remedy. So the folk remedies that I use myself would include mulatti or licorice. You can put a licorice piece, wood or licorice candy in your mouth that helps suppress the cough. You can also drink warm water frequently. अब वार्म वाटर इज नॉट वेरी टेस्टी, बट उसमें थोड़ी सी मुलट्ठी डाल दें, कभी सौंफ डाल दें, कभी दालचीनी डाल दें, दैट हेल्प्स यू. हनी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, एंड दैट इज अनदर वे ऑफ सप्रेसिंग कफ. बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू काउंसल योर पेशेंट्स कि ज्यादातर ये 1-2 हफ्ते में चले जाती है कफ. तो अगर कफ बिल्कुल भी ना जाए, देन लेट्स सी व्हाट डॉक्टर त्रेजा सेज. आई थिंक देन the first line of action would be to get a pulmonary function test and see whether bronchodilator therapy is required. Very rarely a short course of steroids will also help in managing this nagging cough. And once again, we'd like to repeat nutritional optimization, adequate hydration. This will also help in fighting cough. Ishita Goda ji पूछती हैं, can Ambronac tablet be used? Yes, that's right. And Dr. Utsav says that anti-flu medicines, antiviral medicines work best only if started within 24 hours of fever onset. This is very important. Thanks, Dr. Utsav, for highlighting this. तो जब हमने बात की secondary prevention की, हमारा पहला sentence था early diagnosis and management. So you have to start early. Don't wait for too long. साथ के साथ शुरू कर देंगे तो जो antiviral drug है, oseltamivir, it will be able to fight the virus particles. तो आज का हमारा टॉपिक था फ्लू प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट. हमने अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की बात की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वाइनरी ऑल्सो. बट one aspect that we did mention, and I think I forgot to emphasize it, that was air pollution. Air pollution के साथ फ्लू की सिवेरिटी बढ़ती है. तो अब किसकी जिम्मेवारी है टू फाइट एयर पोल्यूशन, टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन? वो हम सबकी है. All of us, we need to prevent air pollution, and I think that would come in the primordial prevention level, and we should raise our voice against air pollution wherever we see it. Dry cough relieved by UVL touch. Yes, Dr. Sharda sir, my grandfather was a Hakim and he used to use this treatment. I have not done it myself personally, but that would be a good idea. So UVL stimulation to relieve dry cough. This is an old-timers treatment. And Dr. Vinay Gupta asked about chewable vitamin C. You can take if you want, but usually vitamin C is adequate in our diet, and very rarely will you have vitamin C deficiency in India. Montelukast and levocetirizine combination is a very good idea. Dr. Pawar sir has raised this point. It should be taken in the evening after 6 p.m. or after 8 p.m. The Montelukast helps in stabilizing the mast cells. Bilastine combination is also good. It is one of the less sedative options that we have. So both are good options. And Montelukast should be taken in the evening.
So we've had a great day today. We've spoken about फ्लू प्रिवेंशन वेरियस लेवल्स. जब हमने सब लेवल्स की बात की तो ऑनेस्टली फ्लू ट्रीटमेंट की भी बात बीच में ही आ गई. एंड डॉक्टर उत्सव थैंक यू कर रहे हैं आपको डॉक्टर एन एस शारदा सर दैट ही हैज बीन डूइंग यूवीएल स्टिमुलेशन सो इट हेल्प्स. एंड मैं तो डॉक्टर एन एस शारदा सर को थैंक यू कर रहा हूँ बिकॉज ही रिमाइंडेड मी ऑफ माई दादाजी हु यूज्ड टू डू दिस ट्रीटमेंट. स्वप्ना जैन जी भी थैंक यू कर रही हैं आप सबको. टू डॉक्टर अत्रेजा, टू डॉक्टर उत्सव, टू रेशमा जी, टू डॉक्टर एन एस शारदा सर फॉर ऑल योर इनसाइट्स एंड कमेंट्स. डॉक्टर उत्सव कहते हैं कि persistent dry cough is not always because of flu. It can be because of postnasal drip. Yes, that is true. And also because of GERD, that is gastroesophageal reflux disease. Gastritis की वजह से भी हो सकता है. रेशमा जी को थैंक यू करेंगे दैट यस इंस्टेड ऑफ द वायरस गोइंग वायरल, ये जो एपिसोड है वेयर वी आर स्पीकिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्लू दैट शुड गो वायरल. थैंक यू मैडम फॉर योर काइंड वर्ड्स. एम्फसिस ऑन मास्क वियरिंग, रूपाली जी एंड रेशमा जी दोनों को थैंक यू करूंगा. मास्क वियरिंग, हैंड हाइजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड एनकरेज एवरीवन टू गो बैक टू वेयरिंग मास्क. एंड यदि जीईआरडी हो तो वी कैन ट्राई म्यूकेन जेल एज वेल. तो हिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा यदि सडन ऑनसेट कफ है along with fever, nasal stuffiness, myalgia, the chances of flu or viral infection are more. But अगर सिर्फ कफ है and there's nothing else, no other systemic feature, no throat pain, it's just cough, then we will think more in terms of postnasal drip or GERD. And then antacids are a good drug of choice to use. With this, I would like to thank everyone. एक और चीज़ ज़रूर बोलूँगा क्योंकि मैं भी फ्लू से अभी उठा हूँ. तो हमने रेस्ट की बात की थी, तो रेस्ट के साथ आता है वॉइस रेस्ट. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम बीइंग रिमाइंडेड अबाउट एट होम रिपीटेडली कि वॉइस रेस्ट करनी है. बट डॉक्टर उत्सव का टेक होम मैसेज रिपीट करेंगे एंड यही मैसेज डॉक्टर अतुल्य अत्रेजा का है फ्रॉम करनाल. Everyone should get vaccinated this year for the annual flu vaccine. As this was the worst ever epidemic of flu, I will agree with that. It was the worst ever epidemic of flu that we have faced in North India. मुझे भी अब 2.5 decades हो गए in practice and actually it has been a bad epidemic this time. Flu vaccine is not provided free of cost like coronavirus vaccine, unfortunately, by the government. But it is available easily in the market, and we would encourage everyone to get it, especially the elderly. Let us repeat again, the elderly, those who are planning pregnancy or pregnant, children, and those with any kind of chronic medical or surgical oncological disease. Especially those with chronic lung disease, they would be very high risk. एंड जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या पब्लिक डीलिंग में हैं उनको तो टीका लगवा ही लेना चाहिए. तो आइडियली दिवाली के आसपास यदि आप बहुत हाई रिस्क हैं तो अभी भी लगवा सकते हैं. यदि आपको फ्लू होके हटाए या कोई और फीवर होके हटाए तो कम से कम 4 हफ्ते वेट करके फिर टीका लगवाएं. गो बैक टू मास्किंग, हैंड हाइजीन, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. बच्चों में यस, फ्लू वैक्सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड above 6 months we should give flu vaccine. The dose will be the same, 0.5 ml muscular. Cost would be around 1500 rupees, 1600 rupees for a good quality influenza vaccine once a year, which translates into something like 100 rupees plus per month. तो रफली 100 रुपए में हमें एक महीने की प्रोटेक्शन मिल रही है फ्लू से. अगर आप इसको कंपेयर करें और सेल्टामेविर के कॉस्ट से तो 550 रुपए की 10 गोलियां आती हैं. तो अगर आपने 20 गोलियां भी खाई तो दैट इज 1100 रुपया. एंड जो पैरासिटामोल, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अनहैप्पीनेस, वो चीजें तो अलग है. तो द वैक्सीन इज चीपर देन द ट्रीटमेंट, सर्टेनली इट इज चीपर. इस सबके साथ आज आपसे इजाजत चाहूंगा. आज हम ही गेस्ट थे, हम ही होस्ट थे एंड वी हैड फन टुगेदर, all of us. And once again, I'd like to thank everybody, especially Dr. Tulya, for having logged in at short notice to help us out with all the difficult queries. जैसा कि आप सब जानते हैं, के मेटॉक्स रेगुलरली आपकी सेवा में हाजिर होता है और मैं आपको मिलता हूँ हर सोमवार और वीरवार. तो अब फिर से आपको वीरवार को मिलूंगा मैं. Let me, I actually, honestly, I forgot the topic for 16th, but let me find it.
एक तो प्रतीक भी है हमारे साथ बैक स्टेज, वो मेरी याददाश्त नहीं ठीक कराता, ही डजंट रिमाइंड मी, बट यस नाउ आई रिमेंबर। बड़ा एंडी टॉपिक है, बड़ा अल्टीमेट टॉपिक है। आवर स्पीकर इज डॉक्टर जयदीप खरे, जो एसोसिएट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी हैं भोपाल में, एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एंड एंडोक्राइनोलॉजी। उन्होंने अपने टॉपिक का नाम रखा है सोशियोक्राइनोलॉजी। तो सोशल मीडिया और एंडोक्रिनोलॉजी का, हार्मोन्स का क्या आपस में तालमेल है, क्या लेन देन है, एंड इसमें क्वाइनरी प्रिवेंशन फिर से हम डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग बिन विद अस। अनीता जी को भी थैंक यू। डॉक्टर तुल्य एक और पॉइंट रेज करते हैं कि कफ सिरप्स अलग अलग तरह के होते हैं। अगर प्यूरिलेंट एक्सपेक्टोरेशन हो रही है, बलगम निकल रही है और वो पीले, हरे, लाल रंग की है, इन्फेक्शन है उसमें, पस है, then we should avoid cough suppressants, then you should encourage the cough to come out, ताकि सारी पस बाहर निकल जाए और पस का बर्डन कम हो जाए बॉडी में। तो सप्रेसेंट तभी देंगे अगर ड्राई कफ हो, नैगिंग कफ हो और कोई पीक नहीं निकल रही। आपको फिर से अब 16 तारीख को मिलेंगे। सोशियोइकोनॉलॉजी इज अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद डॉक्टर जयदीप खरे। तब तक आप सबसे इजाजत लेता हूँ और शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, एंड इन हरियाणवी थारा भला हो। जय हिंद। विशिंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीबॉडी। जय हिंद।